نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آج تم اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور 5 وقت کی نماز پڑھ لو. اللہ پھر تمہیں عزت عطا فرمائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. پروردگار عالم نے چلنے کے لیے پاؤں دیا, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا, دھڑکتا ہوا دل دیا, رگوں میں خون دوڑایا. یہ رب تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے. ورنہ آپ جائیے پورنیہ اور دیکھیے وہاں ہاسپٹل میں تو کسی کا پاؤں کٹا ہوا ملے گا, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ملے گا, کوئی دم توڑتا ہوا نظر آئے گا, کسی کی سانس پھولتی بھی نظر آئے گی, اور کوئی جو ہے اندھا, کوئی کانا, کوئی بہرا. لیکن پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیجئے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحیح العاصا بنایا. اور پروردگار عالم کا اگر ہم اور آپ زندگی بھر شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اور آپ ان کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ میرے دوست, میں اکثر کہا کرتا ہوں, آپ کا بچہ اگر بیمار پڑ جائے, اللہ نہ کرے کہ بیمار ہو, لیکن بیمار پڑ جائے, آپ جاؤ اپنے پڑوسی کے پاس, آپ جاؤ اپنے چچا کے پاس, جاؤ اپنے بھائی کے پاس, پیسہ مانگو, کہے گا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. ایسے موقع پر اگر کوئی ایک اجنبی آیا, انہوں نے 1000 روپے تمہیں دے دیا, آپ نے سر اٹھا کر دیکھا, ان کے پیسے کو لیا اور ان کے بعد چلے گئے ڈاکٹر کے ہاں, انہوں نے دوائی دی, وہ بچہ اچھا ہو گیا, کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ, 1 سال ہو گیا ہے, آپ دروازے پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا بچہ کھیل رہا ہے آپ کے سامنے میں, اتنے ہی میں ایک شخص آ رہا ہے, آپ نے دور سے دیکھا, پہچانا نہیں, قریب آ گیا, پہچان لیا آپ نے, ارے یہ وہ تو وہی آدمی ہے جنہوں نے میرے بچے کی بیماری میں 1000 روپیہ دیا تھا. میرا چچا اس وقت میں انکار کر دیا تھا پیسہ دینے سے, بھائی نے للکار دیا تھا, پڑوسیوں نے بھگا دیا تھا, کسی نے بھی مدد نہیں کی تھی, کسی ایک آدمی نے مدد کی, وہ قریب آ گیا. سچ سچ بتائیے, آپ کرسی پر بیٹھے رہیے گا یا کرسی سے اٹھ جائیے گا؟ سچ بتلائیے. اٹھ جائیں گے. کرسی سے اٹھ جائیے گا, اس کا ہاتھ پکڑیے گا, اپنے کرسی پر بٹھائیے گا. یہ میرا محسن ہے, اس نے مجھ پر احسان کیا ہے, اس وقت سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, اس نے 1000 روپیہ دے کر میرے بچے کی جان بچائی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں, صرف 1000 میں تم ان کے تعریف کا ڈھیر لگا رہے ہو, 1000 میں ان کے پیچھے آگے پیچھے کر رہے ہو, 1000 میں ان کے لیے تم پانی لا رہے ہو, چائے لا رہے ہو, 1000 میں تم اس کا غلام بنے ہوئے ہو. وہ خالق کائنات, وہ پروردگار عالم, وہ خالق و رازق نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ دھان اور مکئی یا ہو. میرے دوست, کیا دو گے جواب تم کل قیامت کے دن؟ مسجد تمہاری ویران ہے, آج تمہاری مسجد میں کوئی اذان دینے والا نہیں, آج تمہارے مسجد میں کوئی صف نہیں, تمہارے مسجد میں نوٹا کے لیے کوئی وہاں دینے والا نظر نہیں آتا ہے. میرے محترم دوست, تیری دولت کس کام کی ہے؟ تم مسجد میں ایک چٹائی نہیں دے سکتے, تم مسجد میں 4-5 لوٹا نہیں دے سکتے. میں تم سے پوچھتا ہوں, اللہ نے اتنی تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا, ان کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ میرے دوست, کیا کیا آپ نے؟ ارے اس وقت کے لوگوں نے تو جو دین پھیلایا ہے, وہ دین ایسے ہی آپ کے پاس نہیں آ گیا. یہ بریانی کھا کے ان لوگوں نے دین نہیں پھیلایا ہے, ان لوگوں نے پتیاں چبائی ہیں, ان کے جسم پر کوڑے لگے ہیں, ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں, ان کے جسم کو تیروں سے چھلنی کی گئی ہے, پھر کہیں اسلام تم تک آیا ہے. اسلام کسی صوفہ سیٹ سے چل کر نہیں آیا ہے. اسلام جو ہے وہ بریانی کھا کے یا گوشت کھا کے نہیں پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے, خدا کی قسم, ان لوگوں نے اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے, اور ان کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی جانیں قربانی پیش کی ہے, اپنے بچوں کو پیش کیا ہے, تب کہیں جا کر کے اسلام پھیلا ہے. آپ نے سنا نہیں, وہ عورت جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی, عرض کی تھی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے 6 بیٹے تھے,
सब शहीद हो गए, सबने शहादत का जाम पी लिया। अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटा रह गया है। अगर आप फरमाएं तो मैं उसे पेश कर दूं। मेरी ख्वाहिश ये है ये बेटा भी मेरा शहीद हो जाए। गिड़गिड़ाती है नबी की बारगाह में। वो औरत आकर कहती है कि मैं अपने बेटे को इस्लाम की राह में पेश करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज इस्लाम आपसे आपका खून नहीं मांग रहा है, आपकी औलाद के तरफदार नहीं है, उन्हें तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। इस्लाम यह चाहता है कि आज तुम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ और 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह फिर तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने इतनी नियामतें दी हैं, वो औरत कहती है या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया जाओ ले आओ। और वो औरत गई है, 6 महीने का बच्चा लाकर नबी के गोद में रख देती है। नबी इरशाद फरमाते हैं यही है तेरा बच्चा? हाँ यही है या रसूलल्लाह। ये तो तलवार भी नहीं उठा सकेगा, ये मैदान में चल भी नहीं सकेगा। वो औरत कहती है हाँ या रसूलल्लाह, मैं जानती हूँ ये तलवार नहीं उठा सकेगा, ये इनके हाथ में ताकत और कुव्वत नहीं है। या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये चल भी नहीं सकेगा। लेकिन मैं पेश कर रही हूँ, आप अपने मुजाहिदीन में देखिए, कोई ऐसा आदमी तो होगा जिसके हाथ में ढाल नहीं होगा। मेरे बच्चे को उसी के पेश कर दीजिए ताकि वो मेरा बच्चा ढाल बन जाए। उन पर जब काफिर और मुश्रिक की तीर चले, ढाल चले, उनके तलवार चले, तो ये अपने बचाने के लिए मेरे बच्चे को आगे कर दे। अल्लाह अकबर। ये है शहादत का जज्बा। ये इस तरीके से इस्लाम आप तक आया है। भैंस का गोश्त खा के इस्लाम नहीं फैला। मेरे दोस्त, आज आप क्या कर रहे हो इस्लाम के लिए? आज आपने क्या किया इस्लाम के लिए? मकई, धान, गेहूं ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है। मेरे दोस्त, तेरे खानदान के लिए, तेरे वारसीन के लिए है। ये घर मकान तेरे वारसीन के लिए है। तूने अपने लिए क्या किया? आपने अपने लिए क्या किया है? झुकाओ अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुकाओ। और जिस दिन झुका दोगे, अल्लाह ताला उसी दिन तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद करेगा। और जिसने झुकाया है, अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद करेगा। मेरे दोस्त, उस वक्त का माहौल ऐसा था, नबी की बारगाह में नबी के पीछे एक शख्स नमाज अदा करता था। बहुत से लोग थे नमाज अदा करते थे, सहाबी सब नबी के पीछे, लेकिन एक शख्स नमाज अदा करता था। नबी सलाम फेरते थे और वो शख्स जल्दी से उठकर चला जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना। जब सहाबाए किराम ने उसके इस अंदाज को देखा, नबी से शिकायत की, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, फला आदमी आपके पीछे नमाज तो पढ़ता है लेकिन दुआ में हाजिर नहीं होता। वो आप सलाम फेरते हैं, वो चला जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया। वो शख्स हाजिर हुआ। तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो? कहा या रसूलल्लाह, आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। तो सलाम के बाद तुम फौरन क्यों चले जाते हो? दुआ में शरीक क्यों नहीं रहते? तो वो शख्स रोने लगा, अर्ज करता है या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आप नहीं पूछते तो मैं इस ऐब को जाहिर नहीं करता, लेकिन आपने पूछ लिया है तो अब बताना नहीं पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि सिर्फ हमारे घर में यही एक कपड़ा है। जब मैं नमाज के लिए आता हूँ तो मेरी बीवी उतार कर मुझे दे देती है और मैं इस कपड़े को पहन कर आपके पीछे नमाज अदा करता हूँ। और जब यहाँ से मैं जल्दी से चला जाता हूँ और जाकर उतार कर अपनी बीवी को दे देता हूँ और मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ। मेरी बीवी यही नमाज, यही कपड़ा पहनकर नमाज अदा करती है। एक कपड़ा है, न बीवी की नमाज छूट रही है, न शौहर की नमाज छूट रही है। आज तुम्हारे पास हजारों कपड़े हैं, तूने अपनी पेशानी क्यों नहीं झुकाया रब की बारगाह में? क्या दिया है तूने रब के इस नेमत के बदले में? तूने क्या किया है? मेरे दोस्त, सोचिए, धान और मकई मरने के बाद ये तेरे काम आने वाले नहीं है। और तेरा बेटा भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पीछा तो कर देगा या 40वां तो कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर तेरी कब्र पर कभी जाने वाला नहीं है। अगर तू चाहता है कि तू अपने लिए कुछ कर, तो
झुका अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुका, और जिस दिन झुका देगा अल्लाह ताला तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनो, और अगर अच्छा नहीं बन सकते अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना देगा। अच्छा नहीं बन सकते है ना, तो अल्लाह अच्छों की सोहबत इख्तियार कीजिए ना। अल्लाह असल में अल्लाह ये चाहता है कि, और रसूलुल्लाह भी यही चाहते हैं, मेरी उम्मती जितने सब जन्नत चले जाए, सब जन्नत चली जाए। अल्लाह के नबी ये कभी नहीं चाहते कि मेरी उम्मती कोई जहन्नम में जाए, जी नहीं। और एक मर्तबा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा के साथ जा रहे थे, उधर से एक औरत आ रही थी, उनके जिस्म में गोद में एक बच्चा था, वो बच्चे को अपने सीने से चिमटाए हुए थी। नबी ने इरशाद फरमाया, इस औरत को देखो। सहाबा ने देखना शुरू किया, आपने इरशाद फरमाया, देखो इसके बच्चे को छीनकर आग में अगर कोई डाल दे तो इस बच्चे पर, इस औरत पर क्या गुजरेगी। कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा तो बाद में आग में जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी माँ अपने बच्चे के खातिर आग में छलांग मार देगी। कभी भी अपने बच्चे को वो अपनी जिंदगी में अपने सामने में चलता हुआ नहीं देख सकती है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों? कहा, वो बच्चे से जो माँ की मोहब्बत है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए मेरे सहाबियों जानिसारो, सुनो, इस माँ को जो अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत है, इससे करोड़ों 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 दर्जा अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत। जब ये बच्चे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार रईसुल उलमा व रईसुल हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये औरत अपने बच्चे को चलती हुई नहीं देख सकती, तो अल्लाह तबारक व तआला जो इतना रहीम है, करीम है, रहमान है, सत्तार है, गफ्फार है, वो कैसे अपने बंदे को जहन्नम में डालेगा? अल्लाह नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। फिर ये बंदा जाएगा कैसे? ये खुद बखुद कूद पड़ेगा, ये खुद बखुद कूद पड़ेगा। देखिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब इस्लाम ने अहाता खींच दिया कि तुम इस अहाते के बाहर मत जाना। याद रखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, आप घर बनाते हो, छत डालते हो, छत के ऊपर में तुम क्या डालते हो? चारों तरफ से दीवार खींच देते हैं, क्या गैलरी डाल देते हैं, क्यों? ताकि मेरा बच्चा छत पर खेले तो कहीं गिर न जाए, कहीं इस बाउंड्री से गिर न जाए, इसलिए बाउंड्री डाल देते हैं कि वो गिरने ना पाए, बच जाए। लेकिन एक नादान बच्चा आपका, बेवकूफ बच्चा आपका, नाफरमान बच्चा आपका उस बाउंड्री पर चढ़ जाए और वहां से कूद जाए, तो उसका हाथ पांव टूटेगा कि नहीं? उसका ब्रेन हेमरेज होगा कि नहीं? वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मेरे दोस्त याद रखो, इस्लाम का भी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री से आगे मत छलांगो। उस बाउंड्री के आगे क्या है? उस बाउंड्री से बाहर शराब है, उसी बाउंड्री से बाहर जुआ है, उसी बाउंड्री से बाहर ज़िना है, उसी बाउंड्री से बाहर सूद है, उसी बाउंड्री से बाहर रिश्वत है, उसी बाउंड्री के बाहर माँ बाप की नाफरमानी है। अगर तूने शराब पी, ज़िना किया, चोरी किया और झूठ बोला, याद रखो खुदा की कसम ये बाउंड्री से बाहर है और आग तेरे लिए तैयार है। शराब मत पी, वरना तुझे जहन्नम में तू अपने आप को कूद पड़ेगा। अल्लाह डालेगा नहीं, बल्कि तुम कूद पड़ोगे। मेरे दोस्त, इसलिए कूदने की कोशिश मत कीजिए, दायरे में रहिए, दायरे में रहिए।